Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, when there is negative news everywhere, sometimes a small positive news gives a ray of hope to us and it allows us to sustain the difficult time. Sometimes we feel that this is impossible, but possible word is hidden in impossible word. So we should always believe everything is possible. And the people, those who are believing in this theory, have utilized the time successfully in last 1 month. Now we are coming to a phase when from 4th of May, lot many restrictions may be taken away by the government. Ministry of Home Affairs have already made it clear that new set of guidelines will come into force from 4th May 2020. In that they may be relaxing so many activities to be carried out in specific areas. Details will be known very soon. Further, as per government assessment, our country is able to contain the impact of coronavirus. As per their assessment, the recovery rate is increasing day by day. Even if we look at the yesterday data, 690 persons recovered from this ailment, whereas 1,702 added new active cases. That means the new addition to recovery ratio is now for single day is 40.5%. That means the active addition is just 60% of the cases, or in other words, only less than 900 cases added to the active cases. Although 1700 cases are there, but 690 of the existing patients recovered also. Another important thing is happening in the entire world. The number of drugs are showing positive result towards the treatment. Yesterday I shared a story of a company in Bengaluru. Today there is a news item that one New York company is also able to create a medicine that is showing positive result. Then yesterday government allowed the interstate movement of migrant laborers, tourists, students also. Those are by chance could not move to their parent places due to lockdown is a indicative that gradually some movement of people is being allowed, and very soon, maybe by the end of May, we will see entirely different picture of India. Many people are hopeful that by 31st of May we will be able to have effective control over this disease. Let's hope for the best. Continue your preparation. Don't be bogged down by negative news spreading around us. In the testing time, this always happens that the negative news sometimes are exaggerated and we are in the pool of darkness everywhere. But there is always a ray of hope. Always believe on ray of hope. Good things will prevail over bad things, and ultimately we will get a chance to appear in the competition examination and get the job. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. जब चारों तरफ निराशा होती है तो उसमें एक आशा की किरण भी होती है. कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, बट इम्पॉसिबल शब्द में ही पॉसिबल शब्द छुपा हुआ है. तो यदि हम अपने अराउंड होने वाले इवेंट्स को देखें तो कल ही कल के अंदर कई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई हैं. भारत सरकार का ये मानना है कि कोरोना के ऊपर जो भारत की पकड़ है काफ़ी इफ़ेक्टिव होती जा रही है और जो रिकवरी परसेंटेज है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है. अगर खाली कल का आंकड़ा देखा जाए तो 1702 नए केसेस हुए, मगर 690 लोग ठीक भी हुए. मीन्स जो नेट एडिशन हुआ है एक्टिव केसेस का
वो लेस देन 60% है। 40.5% रिकवरी परसेंटेज खाली एक दिन की है। और यदि क्यूमुलेटिव देखी जाए तो वो 26% के आसपास है, जो कि अच्छी मानी जाएगी। तो यदि आने वाले दिनों के अंदर रिकवर्ड केसेस और न्यू केसेस ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल केसेस जो एक्टिव केसेस हैं उसकी संख्या बढ़नी बंद हो जाएगी, और वहां से हम एक होप कर सकते हैं कि ये धीरे धीरे एक्टिव केसेस की संख्या घटनी शुरू हो जाए। तो अभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो नए एडिशन है और जो रिकवर हो रहे हैं उनके बीच का गैप घटता चला जा रहा है। वो काफ़ी तेज़ी से, रिकवरी भी तेज़ी से बढ़ रही है, और जो नए केसेस हैं वो 1600-1800 की रेंज में पर डे अभी भी बने हुए हैं। और इनकी भी कंसंट्रेशन कुछ ही राज्यों में है। 5-6 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर अधिकतर केसेस हैं। बाकी कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोई केस भी नहीं है या बहुत कम केसेस हैं। अब इसी को ध्यान में रख के कल सरकार ने कुछ रिलैक्सेशंस भी दी हैं। माइग्रेंट्स जो है, मजदूर जो फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं, या जो घूमने गए टूरिस्ट थे जो फंसे हुए हैं, उनको अपने अपने राज्यों में जाने की छूट दे दी है। तो इसका मतलब अब कुछ मूवमेंट ऑफ लोगों का भी शुरू हो गया इधर से उधर जाने का। ये भी इंडिकेशन है कि 4 मई से नए सेट ऑफ रूल्स आएंगे और लॉकडाउन में काफ़ी रिलैक्सेशन होगी। उसके अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ 4 मई से अलाउ हो जाएंगी। तो अगर यही ट्रेंड चलता है तो सब लोग ऐसी आशा कर रहे हैं, सरकार भी और वेरियस एजेंसीज भी, कि 31 मई तक काफ़ी इफ़ेक्टिव कंट्रोल इसके ऊपर हमारे देश में हो सकता है। और उसके बाद जो जून के बाद काफ़ी चीज़ें नियर नॉर्मल आ सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब मई का महीना कैसे निकलता है, कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट आती है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि पिछले 10 दिन के आंकड़े को भारत सरकार एनालाइज कर रही है तो उसके अंदर वो ये पा रही है कि 1600 से 1800 केसेस के अंदर पर डे एडिशन के अंदर एक फ्लैट हो गई है कर्व, जिसको हम बोलते हैं कि जब फॉल शुरू होना होता है उससे फ्लैटनिंग ऑफ कर्व पहले होता है, कि एक निश्चित संख्या के ऊपर केसेस स्थिर हो जाते हैं और उसके बाद ये संख्या घटने लगती है। तो अर्लियर इंडिकेशन फ्लैटनिंग ऑफ कर्व के इंडिया के अंदर आने शुरू हो गए हैं, जहां नंबर ऑफ एडिशन ऑफ केसेस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही है, उसको वो ओवरशूट नहीं कर रहा। अगर उससे पहले के ट्रेंड देखते हैं तो लगातार ये बढ़ता चला जा रहा था, पर अब ये कुछ दिनों से 1600-1800 की रेंज के अंदर रुका हुआ है। और अगर ये यहाँ से गिरना शुरू हो जाता है आने वाले दिनों में, जिसकी उम्मीद की जा रही है मई के महीने में होगा, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा साइन होगा और जो हमारी निराशा है ये इसको दूर करेगा। हमें क्या करना है, हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। एग्ज़ाम्स होंगे, देर में होंगे, जल्दी होंगे, ये आज कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे ही स्थितियां नॉर्मल होंगी, ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम्स के डेट की घोषणा होगी। पर जैसे जैसे ट्रेंड निकल के आ रहा है कि धीरे 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 रिलैक्सेशंस बढ़ती जा रही हैं और 4 मई से काफ़ी रिलैक्सेशंस मिलने की उम्मीद है, तो उससे ये भी उम्मीद जग रही है कि बहुत जल्दी हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे। 31 मई तक काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि जो पिक्चर होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी जो आज है। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।